बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट की। ज़रा तफसील से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर चाहता क्या है। दूसरा सीज़न है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का। पहला सीज़न मुकम्मल हुआ, सेंट्रल पंजाब जीती। उसके बाद फिर कोचेस का एक इवेल्युएशन का प्रोसेस हुआ और तकरीबन 90 के करीब कोचेस को इंटरव्यू किया गया और कोचेस में रद्दबदल हुआ। मुख्तलिफ़ टीम्स में आप देख रहे हैं कि तब्दीली हुई है। सेंट्रल पंजाब के फ़ातेह कोच एजाज़ जूनियर वो अब सेंट्रल पंजाब का हिस्सा नहीं है, जबकि शाहिद अनवर उनकी जगह हैं। केपी में कबीर खान थे, उनकी जगह आ चुके हैं अब्दुल रज़ाक, और बलूचिस्तान में अरशद खान थे, उनकी जगह आ गए हैं फैसल इकबाल। और बाकी जो कोचेस हैं वो अब तक अपनी जगह बरकरार हैं। वसीम भी मौजूद हैं और बाकी कोचेस, बासित अली आए सिंध की टीम में, पहले यहाँ पर आज़म खान मौजूद थे। तो तब्दीली हुई है, क्यों की है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मकसद है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। और जो शख्स हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के आगाज़ में, उनका नाम है ग्रांट ब्रैडबर्न। हाई परफॉर्मेंस हेड ऑफ़ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग है पाकिस्तान के। न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड के, और उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो कोचेस को एक ऐसा प्लान दें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट, उसका मयार ऊपर आए और बैनुल-अक़वामी सतह से उसका जो गैप है वो कम से कम हो। ग्रांट ब्रैडबर्न इज़ विद अस right now. So Grant, thank you very much for your time. First of all, let's talk about the start from this very stadium where you are sitting right now, National Stadium Karachi. You played your first international game here in 1990. Take us back. You're asking me to have a good memory, Asif. But no, I have fond memories of National Stadium Karachi. Yes, 1990 I was debuting here for New Zealand against Pakistan. First, I was an off-spinning batsman, and remember my first delivery really well. I think my friend David White was at the other end, and Wasim came around the wicket and angled into my legs, and I thought, oh, I'm going to get a off the mark first ball. So I went to work it through leg side, and it swung viciously and was taken by the keeper in front of Ejaz at second slip. So I went up to the wicket and did a bit of gardening and said to my friend Whitey, it's swinging a bit, eh? And he was just laughing. So wonderful memories and a tough tour. I also remember on that tour that at lunchtime, you know, so many of our batsmen weren't so worried about the bounces from Waka and Wasim and Aqib, but it was the toe-crushing Yorkers. Every lunchtime there was 2 or 3 batsmen who had ice on their toes. So yeah, wonderful series. We didn't fare so well. It was a changing of the guard. It was a new team really in the building for New Zealand at that stage. But I also have fond memories of my first ODI in Peshawar. And wow, what a wonderful occasion that was. And yeah, really the ground was chock-a-block full when we arrived, and just a wonderful experience. So I hope in this role I get to go up to Peshawar and see some more games up there in their new stadium. So yeah, looking. Okay, good luck to you for that too. Now coming down to your role, you have just had a meeting with the first 11, the second 11 players and coaches. What did you impart to them? What do you want them to do basically? Yeah, my new role is head of high performance coaching, and I must say that it's an absolute privilege to be in this role, to be serving Pakistan in this opportunity, and I see it as an amazing opportunity that I've been given. I've been challenged with to lead our coaches to new levels. And quite simply, that's what it's about. Our coaches need to raise their game to new levels and provide the coaching that our players need to compete and win on the world stage. So we're about to launch some exciting new directions for Pakistan cricket, and that'll be coming in the next couple of weeks. But we've been working hard behind the scenes to really make it very clear and simple where Pakistan cricket wants to go and how we need to get there. And of course, coaching is a very important part of that.
So with our coaches, we've challenged them really with door things. They need to put their team into contention to win. So winning is incredibly important to us, and planning and preparing to win, of course, is one of the demands for our coaches. But the second and equal important role is to develop our players. So our coaches must provide a learning environment, an environment where our players are challenged, and an environment where our players are tracked and developed. So what I understand, this is a two-pronged strategy. The players are given the opportunity to express themselves within that bracket, that point system of 100 overs to score as many runs and getting as many wickets. Aren't we losing that flavor of test match cricket, of sticking to the wicket, staying to the wicket? What is your take on this particular aspect? No, I mean, Test match cricket is the grand master, and everyone in Pakistan cricket, and I think a lot of people around the world, are still seeing that Test match cricket is incredibly exciting, and particularly the way that teams are choosing to play cricket now. It's a brand that is exciting and marketable and sellable. The fans love it as well. But they also recognise that there's a tradition in Test match cricket that we want to nurture and protect. And we are very much the same here in Pakistan. And it's wonderful to see the beginning of our first class season. There's been some positive cricket played already in round one. We see in the first round we've seen 3 results from some very dynamic cricket towards the end of the game, and also some aggressive captaincy and leadership to show our players how to win. And game sense is one of the big things that we see is lacking in our game, but already with consistent language from our coaches, we are seeing a difference in the way that the game is played this year in first class cricket, and it's wonderful to see, and we hope that that continues for our players and coaches to play an aggressive attacking style of cricket, winning style of cricket that has the opportunity to inspire the nation. Grant, before this season or after the last season, you had a robust process of interviewing the coaches, those were involved in the season last year, and as a result about 16-17 coaches were displaced also. What was the basic idea with you guys, with all 3 that interviewed those coaches? What did you look into those coaches, and what was the basic aim of that? Yeah, Asif, I must say that most of those coaches have been repositioned, not displaced. So we are very clear with what we are demanding from our coaches. As I've said to you, we are demanding 2 things. They must put their team in contention to win and develop players. And the method of doing that we're demanding is for them to have expert relations with their staff, with their players, and to be expert at communicating. So those are 2 qualities of coaches in our coaches that we are demanding. You're right, we for the first time we put all of our coaches through a fair and equal a process, a review process of their performances to date. So we built a profile of each of our coaches, and we gave them an opportunity to assess themselves on those key areas of relationship building, communication, providing a learning environment, and so on. We also sought to give them some 360-degree feedback. So we gathered feedback from other relevant sources to again provide our coaches some meaningful feedback on what their strengths are and what they need to develop as coaches. And then following that, we interviewed all of our coaches. So we interviewed, I think, 95 coaches for at least 45 minutes and listened to them. And so we tried to understand what their philosophy was in coaching, what their method was in coaching. And following that, we interviewed for new positions. So some of them got interviewed again. So we gave everyone an equal and fair opportunity to show their qualities of coaching. But make no mistake, we're demanding a lot of our coaches now. And now our coaches are being supported.
They now have myself and our high performance department been very clear with them. They have very clear specific job descriptions. They are supported with ongoing learning, but they are also challenged. We are challenging them also to make sure that they're providing the coaching that our players need. And we're also stressing very strongly that in Pakistan we have an amazing resource of playing experience, second to none around the world, amazing resource of playing experience. But make no mistake, playing and coaching are two different professions. And it's my job, my privilege, to help our coaches, who are largely our ex-players, to develop those skills that they need to be quality coaches as well, because they're two very, very different things. So Grant said playing and coaching are two different things. This is very important point. We'll talk more on some other issues with Grant Bradburn after this break. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप सुन रहे हैं ग्रांट ब्रैडबर्न को, हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग हैं। इससे पहले भी उन्होंने बात की एक कोचिंग मेथोडोलॉजी जो वो कोचेस को और प्लेयर्स को देना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। Bradburn, we were talking about the winning methodology and all, your evaluation the last season, but the champion coach of the last season is no more. He is not with any first class team. So where is that winning philosophy? I've said to you, it's coaching is about developing quality relationships, quality environments of learning, and they're charged with two things, winning and developing players. So all of the coaches that we've chosen this year so far, we believe have those qualities and have proven evidence of creating those environments. Do we think we've got it exactly right this year? Probably not. We may need to adjust and keep challenging as we go. One of the mantras that we're instilling into our coaches is to be forever learners, and that starts with us as well. So we're learning, but we're certainly guiding and challenging our coaches to take our game and our players to new level. But with our coaching, it's about our players. Players first is our mantra with the National High Performance Centre, and all of our coaches have had a strong message that we need to put players at the top, and our job is really just to be helpers and to help them to be as good as they can be, not as good as we were as players. So our players nowadays, they don't want old coaches sitting down telling them how good they were in their day. Our young players now need inspiration. They need clarity. They need roles. They need an environment where they're involved in a team and they have a special valued job to do in that team. And they need to be inspired to go to new levels to be able to compete on the world stage now, not when we were playing. Looking at this first class system, we are having a second season now. We have there are two tiers, first 11 and the second 11, but there is no real coordination between these two tiers, in a sense that there is no relegation, there is no demotion, which means that there is no motivation as such for a first class team to improve, or to the second class team to improve. Do you also suggest some sort of a tweaks in that? Look, there's always going to be tweaks, and there'll always be solid reviews at the end of each season to see what's worked and what perhaps needs adjusting. But I think it's very, very clear to you and to the players, especially the coaching and the fans, that there's a lot of things that are right, and there's a lot of things that are moving in the right direction. I personally feel that the 16 competition is fantastic, and this is where we need to develop our future international players. We need to raise the standards of our domestic competitions in all respects. Not only our coaches, our analysts, our physios, our support staff, and our players, of course, need to raise that level of domestic, and our selectors need to understand that this is where our future internationals lie. We can't keep learning international cricket at international cricket. We need to provide domestic cricket that is challenging, and we need to provide domestic cricket that is as high as standard as we can, so that it's a stepping stone
to the international game. And what about the pathway to this first class system? There is no lower tier, like there is no city structure, there is no club structure as yet, which I believe it's difficult for you to get players to the first class team through a process. And how are you looking forward to managing it? Yeah, I think you've answered that yourself, Asif. There's no city cricket as yet. There's no club level cricket as yet. But I would fully expect in the coming months to see a strong system that is leading into the current system of second 11 cricket and on to our association first teams. So yes, in this new era, in this new structure of domestic cricket, of course, there is still a gap in providing that pathway through the cities and through the clubs into our second 11s and into our first teams. But I personally believe that the beginning is evidenced by the way that our first class season has started this year. And we see some dynamic cricket, we see some competitive cricket, and we also see a marketable brand of cricket being played. Okay, last bit to you. It's about the National High Performance Centre, which used to be called High Performance Centre earlier. It is headed by Nadeem. You are there, Saklan is there, other chaps are there. How are you looking forward to making it a different place, and how should I anticipate it as a different place from Great question. earlier? And what we want you to see is when you walk into that place, you see an obvious change, that you sense high performance right from the time you walk in the gate. And when you walk into that place, it is about player first, very much about player first. And it's very much about aligning to our national ambitions of where Pakistan are heading over the next 5 years. So we would fully expect over the coming months that we would welcome you to come in and see for yourself, because I think you will see a whole different environment in our National Performance Centre in Lahore, and eventually in all of our high performance centres replicated around the country, that you see a strong sense of winning performance is key, and a strong sense of unity and drive towards creating a stronger, more dominant, more consistent game in Pakistan. All right. Good luck and thank you very much. I wish the best of luck. My absolute pleasure. Thank you for your time. ये थे ग्रांट ब्रैडबर्न, हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत सारे प्लान्स थे इनके, आपके सामने इन्होंने रखे। अब देखते हैं कि किस तरह से इन प्लान्स को अमली जामा पहनाते हैं। हम मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पर, और उसके अलावा जो नीचे टियर है, ख़ास तौर से अंडर 19 और उससे नीचे की जो बात है उसको हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम इससे पहले बात कर रहे थे ग्रांट ब्रैडबर्न से, हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग है। बहुत तफसील से बहुत सारे उमूर पर बात की, उसी को आगे बढ़ाएंगे और ज़रा नीचे भी जाएंगे। पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि वनडे टूर्नामेंट अंडर 19 का ख़त्म हुआ, सिंध की टीम वो जीती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। फवाद मुस्तफ़ा ने ज्वाइन किया है, तजज़ियाकार हैं, लिखते हैं, काफ़ी गहरी नज़र है ख़ास कर जो डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात हैं उस पर, तो उनसे बात को आगे लेके चलेंगे। फवाद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वन। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र जी। आपने सुन लिया ग्रांट ब्रैडबर्न की बातें, आपने सुनी काफ़ी तफसील जी। बातें सारी उनकी सुनी, बड़ी तफसील से उन्होंने चीज़ों पे बात की है, और ये तक भी बताया है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में कोई नई चीज़ वो करना चाह रहे हैं। उसके अलावा एक बात जो उन्होंने की आसिफ, वो ये थी कि जो हमारे प्लेयर जो अब कोचेज़ या कोचिंग के रोल में आ गए हैं, कि उसमें जो पुराने अपने मैचेस के और किस्से या वाक़यात बताते हैं उससे हट के भी बात करनी पड़ेगी। बिकॉज़ हमने वैसे भी देखा कि हमारी एक इशू ज़रूर आता है कि जब कोचिंग के रोल में आ जाते हैं तो उस प्लेयर के रोल से नहीं निकल पा रहे। सो जब उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है तो ज़रूर वो उस पर भी काम कर रहे होंगे। एक तो विनिंग स्ट्रेटजी लेके आनी है, जीत का जज्बा डालना है, दूसरा एक के साथ साथ प्लेयर डेवलपमेंट भी बनाना है।
तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि जो पिछले सीज़न का फिर जो विनर था एजाज जूनियर जो सेंट्रल पंजाब के थे, वो फिर हटा दिए गए अपनी जगह से। तो उसका खैर उन्होंने जवाब तो दिया, वो रिपीट उन्होंने वही बात की जो आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट और विनिंग जो थी वो हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं। सो ये अब इस वक्त इनको सिर्फ थोड़ा सा इस चीज़ पे ज़रूर वक्त दे दिया जा सकता है इस पे बात कि जी थोड़ा सा टाइम और हो जाए, या आने वाले सीज़न में इन्हीं चीज़ों पे जो आज इन्होंने बात की है उस पर कितना अमल होता है। अब लेकिन ये कि आने वाले सीज़न में एक और चैलेंज फिर ये खड़ा है कि नीचे टियर आपकी नहीं बनी, वो उन्होंने तस्लीम किया कि ये एक मुश्किल चीज़ है कि सिटीज़ नहीं बनी हुई, क्लब्स नहीं बने हुए, तो ये ऊपर कैसे सिस्टम आएगा, ये बहरहाल एक चैलेंज है। और देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं, अब कितनी हम जूनियर या सीनियर लेवल के टूर्नामेंट करा दें, जब तक क्लब क्रिकेट नहीं होगी, और क्लब क्रिकेट ये 20 ओवर वाली नहीं, जो 35 ओवर 40 ओवर की हम खेलते थे, उस वक्त तक आपकी क्रिकेट पे आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो आप चाह रहे हैं, या आपने एक ज़माने में आप टॉप 2-3 टीमों में रहा करते थे। सो वो सबसे ज़रूरी है, क्लब क्रिकेट ही प्लेयर बनाती है। आप जब जितना ज़्यादा मैच खेलेंगे उतने आप बेहतर प्लेयर बनेंगे। सिर्फ नेट से और एनसीए में हमने माजी में भी देखा कि प्लेयर पर 2-2 महीने रहते थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं आई जो हम, अगर अभी अंडर 19 क्रिकेट भी अभी फाइनल ये वनडे टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है हाल ही में, अगर आप देख लें तो मैं भी देख रहा हूँ पिछले 3 सालों में अगर आप परफॉर्मेंस उसकी देखेंगे तो उसमें हुआ ये है कि ये वाला साल जो है हमारे एवरेज, मैं बैटिंग की बात करूंगा, बॉलिंग। अच्छा, तो आप ये अंडर 19 जो अभी टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है वनडे का जो सिंध ने जीता है, ये उसमें आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। सिंध ने जीता, बड़ी अच्छी बात है सारी। अब तो उसकी वजह यह है कि पहले तकरीबन 16 रीजन्स होते थे, अब एक सूबे की टीम बनना तो स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से एक टीम बना रहे हैं। और बच्चों को, कुछ जो फाइनलिस्ट थे उनको 11-11, उसके अलावा डबल लीग में तो 10-10 मैचेस मिले, लेकिन हमारे इतने सारे मैचेस के बाद भी 2 बैट्समैन जो टॉप 10 में आए जिनके 40 से ऊपर एवरेज थे। अगर हम इन प्लेयर्स के साथ वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे या और बाकी दुनिया की टीमों से खेलने जाएंगे तो ये अच्छी खबर नहीं है कि तकरीबन 90 के करीब प्लेयर खेल रहे हैं, उसमें से हर टीम में 25-30 आप लगा लें बैट्समैन होंगे, उसमें 2 प्लेयर ऐसे मिल रहे हैं आपको इतनी मेहनत के बाद के जो 40 से ऊपर एवरेज से रन कर रहे हैं। 25 अगर आप लगाएंगे तो ये हो जाते हैं 150। नहीं, मैं अब देखिए ना, 15 की टीम बनती है ना, तो 90 की टीम लगा लें आप 6 टीमों में, हर टीम में मतलब 7 से 8 आप लगा लें कि जी बैट्समैन कितने होते होंगे, 8 रखे होते होंगे आपने। सो 8 से भी अगर आप 6 लगाएं तो 50 के करीब बन रहे हैं। उनमें से भी अगर 2 लड़के 40 से ऊपर के एवरेज पे रन कर रहे हैं, सो ये थोड़ी परेशान कुन बात है। आपको बैट्समैन चाहिए, और ये अंडर 19 क्रिकेट माजी में ऐसा होता था आसिफ कि हर टूर्नामेंट के बाद आपको कम से कम 3 से 4 पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास प्लेयर देती थी। इस टूर्नामेंट को मैंने देखा, कोई एक प्लेयर मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि जो सेकंड 11 के लिए भी काबिल हो, बिकॉज वो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जब यहाँ होगी तो खुद ब खुद आप आगे आ जाते हैं। सो हमें उस स्टैंडर्ड को अपने आगे बढ़ाना होगा, और तब जाके आपको वो प्लेयर ऊपर के लिए मिलेंगे। और वो नीचे जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार है या नीचे जो पूल है सिलेक्शन का, वो फिर इसका मतलब इतना कारआमद नहीं। क्लब क्रिकेट नहीं है ना, प्लेयर कहाँ, प्लेयर को तो आपसे बात कर रहा हूँ ना कि 40 का, अगर उसमें बच्चों को थोड़ी तनकीद कर रहा हूँ। मसला ये कि वो बच्चे खेल ही ये पूरे साल भर में रहे हैं, ये 10-12 मैचेस। और जब से ये नया सिस्टम आया है 2 साल हो गए, तो लड़का जो अंडर 19 था वो तो ओवर एज हो गया होगा ना। बहुत से हुए होंगे या जो रहे भी होंगे। प्लस क्लब क्रिकेट हो क्या रही है 20 ओवर की, बिकॉज ग्राउंड इतने महंगे हो गए हैं कि 40 ओवर के तो मिल ही नहीं पाते ना आपको। अब 15-15 हज़ार के 20-20 ओवर के आपको ग्राउंड मिल रहे हैं एक टाइम का। सो पूरे डे के लिए कहाँ से पैसे लाएगा क्लब? अब ये मुझे बताएं कि 90 क्रिकेट एसोसिएशंस बनने जा रही हैं, जी बनेंगी, और उसके बाद फिर उनके नीचे क्लब्स भी बनेंगे। हर एसोसिएशन के अंदर लगभग मेरे ख्याल से 15 से 20 क्लब्स तो जो वो जिनके पास फुल जो कि फुल मेंबर क्लब, फुल मेंबर क्लब का मतलब ये है कि उनके अपने ग्राउंड होगा, अपना हर चीज़, जिम हो, सब कुछ हो जी। तो ये तो 90 हो गए, एसोसिएशन के ग्राउंड्स 90 हो जाएंगे। ये देखना है, मुश्किल काम है। देखिए कराची वगैरह में शायद इतना प्रॉब्लम ना हो कि 10, 12, 15 आपको मिल जाएं,
10, 12, 15 ग्राउंड्स कराची में मिल जाएंगे। नहीं मिल जाएंगे आपको, आप अगर आप नॉर्थ में या फिडल एरिया एंड साइडों में चाहे तो 8-10 तो मैं आपको भी गिना दूंगा। ठीक है, ऐसी चलें, बात नहीं कराची में ठीक है, मिल गई, यानी कराची सिंध में का मिल तो गया मसला हल आपको, हो गया। पंजाब में भी हो जाएगा, इंटीरियर सिंध में शायद आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उतने क्लब्स ना हो पाएँ बिकॉज क्लब ग्राउंड होना, जिम होना, सो ये आएगी एक इशू। लेकिन सर वो सब हो जाए, लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस लगता है, आसिफ इतना आसान नहीं है। तो ये हम तो साल भर से ऑलरेडी पीछे हो गए, क्योंकि हम देख नहीं रहे ना, कोई इस चीज़ को एड्रेस क्यों नहीं कर रहा। ज़्यादातर बात आती है कि जी फला टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है, बहुत आला काम होगा, और ये बहुत अच्छा काम भी है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसमें फिर वो क्रेडिट का दौर शुरू हो जाता है कि इसका क्रेडिट है, उसका क्रेडिट है। असल चीज़ तो आपके सिस्टम की बेस है, टांगे हैं। देखें बात ये नहीं कि काम क्यों नहीं हो रहा, ये दूसरी बात ये कि बाकी सवाल भी तो उस लिहाज से ज़्यादा फोकस भी तो लोगों का उसी तरफ होता है ना, ऊपर का। हाँ। कि जी ऊपर की टीम कितना अच्छा खेल रही है, कितना बाहर की टीमें आ रही हैं जा रही, नीचे इस बेस या सिस्टम पे कितनी बात होती है, बात भी उतनी नहीं होती। लेकिन जो कुछ आप हासिल करना चाह रहे हैं, जब आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा या बेस नहीं बनेगा, तो वो चीज़ लंबे वक्त के लिए नहीं होगी, वो शॉर्ट टर्म पे आपको फायदा हो जाएगा। आप गवर्निंग बोर्ड का इजलास होने वाला है जी, अगले हफ्ते होगा जी। उसने भी, अब मालूम नहीं क्या उसमें बात होती है, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो वही पुराना वाला है, और उनको एक्सटेंशन मिलता जा रहा है आर्टिकल 49 के तहत। ये पीसीबी का आइन कहता है कि वो एक्सटेंशन उनको मिल सकता है। तो वहाँ पर भी यकीनन यही बात होगी। आजकल तो एक नई बात भी चल रही है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वसीम खान साहब, उनको एक्सटेंशन दे दिया जाए, हालांकि अभी तो उनके तकरीबन 1.5 साल है बाकी। देखें अगर आपने प्लान कुछ सोचे हुए हैं तो, और 5 साल का अगर उन्होंने ही प्लान बनाया, तो मैं समझता हूँ कि पूरा चांस दिया जाए। ठीक है, हमारे यहाँ होता यही है कि जी फिर एक चीज़ नहीं आ जाती है, फिर नया अगर आपने किया तो ठीक है एक्सटेंशन दे दें आप, लेकिन उससे पहले चीज़ें तो नज़र आए ना। साल ऑलरेडी कोविड में चला गया, अब फिर आप देखें कि क्रिकेट जिस तरह से हो रही है, लेकिन नीचे कोई काम होता फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है इंटरनली कुछ बातें हो रही हों, लेकिन अभी तक वाजे नहीं आया कि कितने क्लब्स रजिस्टर हो गए, और कब तक, दिसंबर तक सुनने में आ रहा है कि जी क्लब्स नवंबर के मिड से सुना है कि जो उसने कहा था जुनैद ज़िया ने पिछले प्रोग्राम में हमारे, कि नवंबर के मिड से शुरू करेंगे जी, हो जाएगा, और जनवरी में कहीं के जाके बाद हम खत्म कर सिटीज देंगे। का मार्च या फरवरी में टूर्नामेंट का भी प्लान हो रहा है। हाँ। सो लेट्स सी, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। जितना इसमें देर लगेगा उतनी क्रिकेट हमारी क्योंकि पीछे जाएगी। इसी चीज़ पे होना चाहिए कि आपकी बेस इस वक्त तक नहीं बनी। बिल्कुल। तो अब अगर हम ये बात करते रहें कि ऊपर एक्सटेंशन मिलना है नहीं मिलना, हाँ, दिस इज अ डिफरेंट ये स्टोरी। बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। जो चीज़ अभी लेकिन वैसे हुई है ना- मिलना क्यों चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं क्यों मिलना चाहिए? नहीं, मैं देखिए मेरे 3 लिए साल ना, है, 3 नहीं, साल मेरे का लिए टाइम देखिए था। मेरे लिए तो मिलना ना मिलना, इसलिए मैं भी बात नहीं कर रहा कि मैं समझता हूँ कि जी जिसने जो काम का अगर 5 साल का उन्होंने दिया था ना, या तो मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट हो के जी तैयार है 5 जो साल का करे। उन्होंने दिया क्यों था जब उनका टेन्योर 5 साल का नहीं है? ये एक सवाल है मेरा। नहीं देखिए मुझे अभी तक सच मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई ऐसा नहीं पहले काम हुआ कि मैं कहूँ कि जी वसीम साहब ने उनसे बुरा किया है। मुझे ओवरऑल थोड़ा सा बेहतर ज़रूर चीज़ें नज़र आई हैं, और उम्मीद यही है कि एक बंदा जो प्रोफेशनली आया, अगर उसे 5 साल दिए तो उसे पूरा टाइम 5 साल नहीं दिए, 3 साल। अगर ये एक्सटेंशन की तरफ हो रही, 3 साल दे दिए, ठीक है, आप 2 साल और उन्हें दे दें, उनके सामने क्योंकि जो पता चल समझने जाएगा। वाली चीज़ है ना, आपसे सवाल तो मैंने कर लिया, लेकिन इस सवाल की बेस नहीं थी। हाँ। समझने वाली चीज़ ये है कि जल्दी में लग रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक ऐसी पोजीशन है जो कि डिस्क्रेशन होता है चीफ, आपके जो बोर्ड के चेयरमैन जी, हैं चेयरमैन उनका। का उन्होंने decide इससे पहले के आइन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ये दोनों पोजीशंस क्लब same, थी, हाँ। एक ही के पास ही बिल्कुल, सारे पावर्स बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो यहाँ अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया है तो उस तरीके को आप अगर गौर याद करें तो वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया जी, और उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसको अप्रूव किया था। तो इसी तरह से चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इनको एक्सटेंशन दे सकते हैं, उसमें कोई बिल्कुल, बुराई की बात नहीं। अब बिल्कुल, इसमें आप बिल्कुल। बहस करें कि हाँ, कि ठीक सही है नहीं या गलत है, हाँ। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आपकी भी उस लिहाज से कि इतनी जल्दी की बात क्या है, बिकॉज ऑलरेडी उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टाइम मौजूद है। हाँ, ये बहुत time है। 2-3 और महीने असल में पहले देखिए, अब ये हो सकता है मेरी चीज़ें बात हो गलत सकती हो हैं। सकता है बात गलत हो, हाँ। लेकिन आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, मुझे ऐसा फील आता है कि जिसकी कि ज़रूरत नहीं है वसीम खान साहब को, ऐसा लगता है कि एक प्रोजेक्शन, एक हल्की सी मुहिम सी ऐसा फील होता है कि आती है, और उसमें फिर एहसान वानी साहब
की टीम जो है वो पीछे रह जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर टू टीम्स वर्किंग। नहीं मेरे ऐसे ख्याल में से एक बात ये तो आसिफ एक ही उस पे है, एहसान मानी साहब ही ठीक है, उन्होंने CEO और सारा कुछ कर दिया है, लेकिन एहसान मानी साहब ही पीछे मौजूद हैं और उनकी जब वो कहते हैं तो सुनी जाती है, और उनका ही काफ़ी हद तक उन्होंने ठीक है ऊपर दे दी, लेकिन डिसीजन उनके भी काफ़ी अभी भी उन्हीं की टीम समझिए आप ऑन द सेम पेज बिल्कुल बोथ, आर यू श्योर? बिल्कुल 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 कॉन्फिडेंट ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तो कोई नहीं है क्रिकेट नहीं, बोर्ड नहीं, की नहीं, टॉप ऐसा- हायरार्की ऐसा में नहीं। कहीं कोशिश ये कर रहा हो कि वो क्रेडिट लेना चाहे, क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स अगर आ रही हैं तो देयर इज देखिए इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, डिपार्टमेंट, हाँ देयर इज अ डिपार्टमेंट टू कैरी आउट दिस। नहीं देखिए इंटरनेशनल टीम आने का फायदा जो है ना सर एहसान मानी इंटरनेशनल एहसान क्रिकेट मानी साहब तक नहीं है, ये तो गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है ना, सियासत होती है जाहिर है, बाकायदा। शुरू पहले वहाँ भी से- हमने शुरू माजी वहाँ में भी देखा है कि जी वो क्रिकेट को भी अपने अपने उसके लिए इस्तेमाल किया गया, सियासी जितनी भी पार्टियां हैं या गवर्नमेंट हैं, पास्ट में भी हुआ और अब भी होता है कि जी ये भी एक अचीवमेंट है कि इंग्लैंड की टीम आ रही है या आएगी, भाई या इंग्लैंड की साउथ टीम आ रही है। अफ्रीका मैं जो कह रहा हूँ कि क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक डिपार्टमेंट है, तो क्या जी। जाकिर खान का कोई रोल नहीं है? नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, नहीं बिल्कुल जी रोल तो है ऑब्वियसली, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है। वही है ना, बट देखिए सबका सब में रोल होता है। आप भी एक डिपार्टमेंट के तौर पे अपने इदारे में काम कर रहे होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा या सबसे ज़्यादा जो भी होता है वो तो या इदारे को होता है ना। अगर इदारे का कोई आदमी या कोई डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है, उसका जवाबदेह इदारा ही होता है, या उसको फ़ायदा होता है या उसको नुकसान होता है। फिर उस इदारे को, उन लोगों को बराबरी की बुनियाद पर उनकी प्रोजेक्शन भी करनी चाहिए। देखिए मैं इस पे वही वाली बात करूंगा कि इस किस्म का इंसाफ चलें, कहीं भी सोच नहीं है, लें, कॉर्पोरेट सोच सेक्टर में भी इंसाफ सोच नहीं लें, मैं है। आपसे जो आदमी कोई अपनी पूछ लूं। प्रोजेक्शन खुद कर रहा होता है, ये हमने देखा है, हाँ। हमने भी काम किया है यहाँ। तो वही वाली बात है कि आपको खुद भी चीज़ें अपने आप को प्रोजेक्ट करना होता है, और अब ये तो बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह आप जाएं अपनी प्रोजेक्शन खुद करनी पड़ और रही है। सोशल मीडिया के आने के जी, बाद तो सोशल ये मीडिया के चीज़ें बाद और तो जिम्मेदारी जी हाँ। बढ़ जाती है। चले फवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम था क्योंकि हमने एक पूरा सेगमेंट ब्रैडबर्न के साथ भी किया, आपकी बात भी सुनी, काफ़ी टू द पॉइंट बात हुई है इस सेगमेंट में। मकसद सिर्फ उसका ये था कि जो अच्छी चीज़ है उसको हाईलाइट किया जाना भी चाहिए और किया जाता भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी सोशल मीडिया जो हैंडल है वो खासा एक्टिव है, हैंडल नहीं हैंडल्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, तो अच्छी बात है। और अगर अच्छा कर रहे हैं तो लोग उनकी तारीफ़ भी करते हैं। अगर कहीं कुछ लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता तो उसके बारे में एक मनफी राय भी दी जाती है। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, काम होता रहना चाहिए, काम चलता रहना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करेगी, हमारी दुआ है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।